تو میری طرف سے، چرچ کی طرف سے، ہمارے خاندان کی طرف سے آپ سب کو ویڈنگ اینیورسری، بھائی آپ کو، بہن کو، بھائی کو بہن کو، اور بہن کو برتھ ڈے مبارک ہو۔ ہاللیلویا۔ تو آج ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے، زندہ کلام میں سے، خاندانی زندگی کے حوالے سے۔ وہ اس لیے کہ جب بھی ویڈنگ اینیورسری آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے، اچھی بات ہے کہ ہم خاندانی زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا سیکھیں تاکہ ہمارے ایمان کو اور مضبوطی ملے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی خاندانی زندگی کی ابتدا جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ خاندانی زندگی کی ابتدا جو ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ شادی سے، آف کورس۔ جب میاں بیوی شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو یہاں سے خاندانی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اور ایک نیا خاندان جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جو بہت بڑا منصوبہ ہے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ نکالیں میرے ساتھ جینیسس، اگر پیدائش کی کتاب میں سے آپ دیکھیں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت دیکھیں۔ ابھی ہم تھوڑا سا سیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے خاندانی زندگی کے حوالے سے۔ تو 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ تو خدا نے کیا کہا جی کہ آؤ ہم کیا کریں جی؟ انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ یہ خدا کا یہاں سے منصوبہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے خاندانی زندگی کا۔ خدا نے کہا کہ انسان کو ہم اپنی کس کی شبیہ پر بنائیں گے؟ اپنی شبیہ پر اس نے کہا، اور اپنی مانند۔ یہ دو لفظ جو ہیں دیکھیں یہاں پر غور طلب ہیں کہ انسان کو خدا نے پہلی بات کیا لکھا ہے جی؟ اپنی نہیں، دوبارہ پڑھیں، انسان کو اپنی صورت پر، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اپنے شبیہ کی مانند شبیہ کی مانند بنائیں، شبیہ کی مانند، اوکے؟ تو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ تو آج میں چونکہ خاندانی زندگی کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے ہم شبیہ اور مانند کو نہیں چھیڑیں گے تاکہ سارا وقت اس میں نہ لگ جائے۔ تو خدا کا جو منصوبہ ہے وہ یہاں پر نظر آتا ہے کہ خدا نے انسان کو، انسان جو ہے اس اے کامن ورڈ فار میل اینڈ فیمیل، اوکے؟ تو خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر اور اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنایا۔ اور آگے 27ویں آیت میں لکھا، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور آگے ہم جانتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ اس طرح سے تھا کہ خدا نے انسان آدم کو جو ہے وہ پہلے بنایا، اس کے بعد اس میں سے انسان نے ایک عورت کو بنایا۔ And you know this, isn't it? And everybody know this. Hallelujah. آدم نے خدا سے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وقت آیا کہ خدا ان کو ٹیسٹ کرے تو خدا نے ان کو کہا کہ باغ عدن میں سے تو ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے لیکن ایک درخت کا پھل تو نہیں کھا سکتا۔ یہ حکم آدم کو دیا گیا تھا۔ خدا نے ریکویسٹ نہیں ان سے کی بلکہ یہ حکم کے طور پر کہا کہ تو باقی سب کچھ تو کھا سکتا ہے، جتنے بھی درخت کے پھل ہیں تو کھا سکتا ہے لیکن ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا یعنی اس کی جو وائف تھی اس کو ڈائریکٹلی خدا نے یہ حکم نہیں دیا تھا بلکہ اس کو یہ حکم کس سے پہنچا تھا؟ آدم سے، کیونکہ وہ حکم کے بعد پیدا کی گئی۔ تو اس کو آدم سے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ خدا نے یہ کام جو ہے کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم نے اس درخت کا پھل جو ہے وہ بالکل ہی نہیں کھانا، اوکے؟ لیکن
میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھل میں سے کھا لیتے ہیں, دونوں کھاتے ہیں, پہلے عورت اور بعد میں مرد جو ہے وہ اس میں سے کھا لیتا ہے. جب مرد کو خدا نے پوچھا, there was a reason why he come to Adam first. حالانکہ پھل خدا کو نہیں پتا تھا کہ عورت نے کھایا ہے. He knows everything. He's omnipresent. He's everywhere. اس کو ہر چیز کے بارے میں معلوم تھا. لیکن آدم ہی کیوں, خدا نے آدم کو کیوں طلب کیا اور اس سے سوال کیا؟ کیوں آدم کو طلب کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ حکم آدم کو دیا گیا تھا. آدم knows well کہ یہ حکم کیا ہے, اسی لیے اس کو جو ہے وہ بلایا گیا. لیکن خدا کے حکم سے بڑھ کر ترجیح جو ہے آدم نے عورت کو دی اور اس پھل میں سے لیا اور کھایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پھل کھا چکتے ہیں تو وہ گناہ میں گر جاتا ہے, اور آدم نے خدا سے بڑھ کر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دی اور اپنی بیوی کی بات مانی اور خدا سے بے وفائی کی. اس طرح وہ گناہ میں گر گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کا علاج خدا نے مہیا کیا. we already seen this. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا اور اس میں گہرا بھید جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے جب ان کو یونائٹ کیا, اور بائبل میں کیا لکھا ہے, جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو کوئی جدا نہ کرے. اور خدا نے آدم اور حوا کو جوڑا. خدا نے ان کو یہ کہا کہ وہ کیا ہوں گے, ایک تن ہوں گے. پہلے وہ دو تھے, پہلے وہ کتنے تھے جی؟ دو تھے. لیکن خدا نے ان کو کتنے پکارا؟ ایک تن, یعنی وہ ایک ہوں گے. پہلے وہ دو تھے, بعد میں خدا نے ان کو ایک کر دیا. اب شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ دونوں کا سٹیٹس بدل کر 2 سے 1 ہو جاتا ہے. یہ فارمولا ہے بائبل میں. شادی کے بعد کیا ہوتا ہے, جب ایک لڑکی اور ایک لڑکا شادی کرتے ہیں تو شادی کے بعد فوراً ہی پاسٹر کیا کہتا ہے کہ جن کو خدا نے جوڑا ان کو جدا نہ کرے. ایسے ہوتا ہے نا. پھر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک نہیں, دو نہیں, بلکہ ایک تن ہیں, ایک تن ہوں گے. بائبل کے ہر ورس جو ہے ان کو بتائی جاتی ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد دونوں کا سٹیٹس بدل جاتا ہے. پہلے وہ دو الگ الگ تھے, شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد وہ ایک ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا, وہ ایک ہو جاتے ہیں. اور یہ کس نے کیا؟ ایک ان کو کس نے ٹھہرایا؟ کیا کسی انسان نے, یا کسی فرقے نے, یا کسی مشن نے, یا کسی اور مخلوق نے؟ بلکہ خدا نے انسان کو جب ایک شادی کے بندھن میں باندھا تو ان کو ایک کر دیا, ایک کر دیا. اب جب خدا ایک کرتا ہے تو اس کے ساتھ حکم ہی فرماتا ہے کہ جس کو میں نے جوڑا ہے, جس کو خدا نے جوڑا ہے, ان کو کوئی انسان جدا نہ کرے. No one have authority to make them separate. No one have authority. کوئی دنیا کا جج, کوئی دنیا کا ایسا کوئی جسے کہتے ہیں ایلڈر, یا کوئی بڑا عقل مند شخص, یا کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو, کسی کو خدا نے یہ اختیار دیا ہی نہیں کہ ان کو الگ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی کو تو خدا نے جوڑا ہے. ہاللیلویا. اب پولس رسول کی بات کو ہم دیکھتے ہیں, بلکہ 3:16 میں ایک دفعہ چلیں گے. جینیسس 3:16. تاکہ میں چاہتا ہوں کہ بات جو ہے اس کو پڑھ کے دیکھا جائے. اس میں عورت کی سزا کا ذکر ہے. اس میں اگر آپ 14 سے پڑھیں تو خدا نے سام کو بھی سزا دی. پھر ہم 15 میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے عورت کے درمیان اور اس کی نسل کے درمیان عداوت ڈالی. اس کے اوپر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ it was the seed of the woman. اوکے. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے is the seed from God. ان کے درمیان دعوت ڈالی گئی, اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تیری ایڑی کو کاٹے گا اور تو اس کی کھوپڑی جو ہے اس کو کچلے گا. تو خدا کا پلانز جو ہے وہ علاج بھی ساتھ ہی مہیا کیا ہوا ہے. علاج بھی ساتھ ہی گناہ کا جو ہے خدا نے مہیا کیا. لیکن بات ہم کر رہے ہیں کہ خدا نے جن کو جوڑا ہے ان کو خدا نے ایک کیا ہے. اور میاں بیوی جو ہیں یہ خداوند میں ایک ہیں. آپ دوسروں میں دیکھیں, دوسرے مذاہب میں اور دوسرے بہت سارے جو مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں, بہت سارے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں,
کسی مذہب میں اس طرح کی تعلیم نہیں پائی جاتی کہ خدا نے ان کو جوڑا اور ان کو ایک کر دیا. کسی بھی مذہب میں میاں بیوی ایک نہیں ہے, وہ دونوں الگ الگ ہیں سوائے کرسچینٹی کے. صرف کرسچن مذہب میں جب میاں بیوی شادی کے بند میں بنتے ہیں تو ان کو خدا نے ایک کیا ہے. ہاللیلویا. اور ہم ایک ہیں. اور اس کو افسیوں کے خط میں پولس رسول ایک بڑا بھید کہتا ہے. نکالیں افسیوں 5 باب میں چلیں تو وہ اس کو بہت بڑا ایک بھید کے طور پر ظاہر کرتا ہے. 5 باب کی اگر دیکھیں 31ویں آیت سے دیکھیں, اس باب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. یہ بھید کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ یہ بھید تو بڑا ہے. یہ بھید تو بڑا ہے. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پولس رسول جو ہے وہ ہماری توجہ اس بھید کی طرف دلانا چاہتا ہے. یہاں پر ایکچولی جو بات جو چلتی آ رہی ہے وہ بیویوں کے حوالے سے ہے, شوہروں کے حوالے سے ہے. افسیوں 5 باب میں اس میں لکھا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابعہ رہو جیسے خداوند کی. اب بہت سارے لوگ جو ہیں یہ جو تابعہ رہنے کا جو ورڈ ہے نا, اس کو بڑے گہرے اس کے میننگ ہے, اس کو دوسرے میننگ میں لیتے ہیں کہ جو عورت ہے اس کو مرد کے تابعہ رہنا چاہیے, انڈر دا کنٹرول آف مین. Did you believe? Bible did not say that. The woman should be under the control of man. You know that? It's not that. تابع رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ she should be under the control of man. اگر میں یہ کہوں کہ بھائی آصف کو کہ کھڑا ہو جائے 1 منٹ کے لیے پلیز. اگر بھائی آصف کھڑا ہو گیا ہے, آصف کھڑا ہو گیا ہے, یہ کتنے آصف ہیں؟ ایک ہی ہے. تو یہ اپنے تابع رہ سکتا ہے؟ کون شخص ہے جو اپنے ہی خود ہی سے انکار کرے, اپنے ہی وہ اس میں تابع رہے؟ یہ تو فارمولہ رانگ ہو جاتا ہے. آپ اپنے تابع کیسے رہ سکتے ہو؟ بیٹھ جائیں بھائی. اگر خدا نے میاں اور بیوی کو ایک کیا ہے اور وہ ایک ہیں اور ایک جو ہے وہ اپنے تابع کیسے رہے گا؟ خدا نے خدا کا تابع رہنا کہ نہ کہ ہم نے ہسبینڈ کے تابع رہنا ہے. خدا نے ہمیں ایک بنایا ہے. پہلے ہم 2 تھے, خدا نے دونوں کو ایک بنا دیا. اب ہم 2 سے ایک ہو گئے. اب ایک جو ہے وہ اپنے تابع نہیں رہ سکتا ورنہ فارمولہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ سیکرٹ کیا ہے؟ اس لیے تو اس کو پولس رسول نے بھید کہا ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ بھید کیا ہے. تو بھید جو ہے پہلی بات یہ کہ عورت جو ہے کسی بھی صورت میں مرد کی غلام نہیں, نہ وہ اس کے کنٹرول میں, لکھا گیا کہ اس کے کنٹرول میں رہے یا اس کی غلامی میں رہے. اس طرح کی یہ تعلیم نہیں ہے. بلکہ دیکھیں میں ایک اور اگزامپل دے کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا تاکہ بات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. اب دیکھیں گھرانے کی جو گھر میں جو مینیجر ہے وہ عورت ہوتی ہے. گھر کی مینیجر کون ہے؟ جو مینیج کرتی ہے گھر کو. تو مینجمنٹ کا جو کام ہے وہ گھر میں کرنا جو ہے وہ عورت کا کام ہے. شی از دا مینیجر ان دا ہاؤس. اوکے. اور ہسبینڈ کیا ٹھہرا؟ ایک ہی بنایا تھا نا خدا نے, دونوں کے ایک ہی بنایا نا. And he is a manager too. And he is your manager. In that sense, you should submit to your husband. You understand that? For each other. ایک ہی بات ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ ایک مینیجر کہہ رہا ہے میں ادھر کو جانا ہے, دوسرا کہتا ہے میں ادھر کو جانا ہے. You got to, اگر آپ مینیجر ہیں, کسی بھی فرم کے آپ مینیجر ہیں, آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے. آپ کو جو بھی کمپنی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے, جو بھی لا ہے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. You both are the manager in one house and God made you one. اور both manager جو ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہے جس بائبل میں لکھا ہے, اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. ہاللیلویا. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں ایک کیا ہے تو ہم ایک ہیں. ہاللیلویا. اگر خدا کا کلام ہمیں یہ پڑھاتا ہے, سمجھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کے مطابق چلنا بھی چاہیے. بھی اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی. کیا ہم خدا کے غلام ہیں؟
खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि हमें गुलामी की रूह नहीं दी गई, वही रिलेशनशिप विद गॉड। तो जैसे खुदावंद की हम औरतों के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, जैसे खुदा की ताबेदारी आप करते हो, इसी तरह आपको एक दूसरे की ताबेदारी करना है, एक दूसरे के लिए होना है, एक दूसरे की बात को समझना है, आपकी बात एक होनी चाहिए, आपको खुदा के कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए। फिर आगे लिखा जैसे खुदा, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। शौहर किसका सर है जी? बीवी का। कैसे सर है जी? अभी मैंने पढ़ा कैसे सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है। अब इसको आप समझे कि औरत का सर कौन है? मर्द। कैसे है? जैसे मसीह कलीसिया का सर है, जैसे मसीह हमारा सर है, सब हम एक है ना। देखें, वननेस की हम बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है। जैसे कलीसिया जो है वो मिल मिला के हम क्या है, मसीह का बदन है, और एक ही बदन है, एक ही है ना। इस तरह मियाँ बीवी को भी एक होना चाहिए, जैसे कलीसिया एक है, ऐसे ही जैसे मसीह कलीसिया का सर है, इसी तरह का सर जो है वो हस्बैंड को होना चाहिए। किस तरह का हस्बैंड होना चाहिए जी? जैसे मसीह कलीसिया का सर है। अब मसीह कैसा सर है, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। मसीह कैसा सर है? मसीह जो है वो कैसा सर है? बोले हस्बैंड क्यों खामोश है? बताएं, मैं हस्बैंड से क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि आप जो हैं आप अपनी बीवी का सर हो बाइबल के मुताबिक। बीवी का जो शौहर है उसका सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है। और मसीह कलीसिया का कैसा सर है? बोले वो क्या करता है? वो प्यार करने वाला है। और क्या करता है? क्या मसीह ने कलीसिया के लिए सफरिंग नहीं की? हमें तो ज़रा सफरिंग आ जाती, कहते हैं तेरी खातर मैं बीमार हो गया, मुझे तो बुखार चढ़ गया काम कर करके, तेरी खातर तो ये हो गया। शादी से पहले और शादी के बाद कितना डिफरेंस हो जाता है। शादी से पहले मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा दिल नहीं लगता, मुझे नींद नहीं आती, मुझे वो नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, इतनी सारी बातें, ढेरों बातें रातों रात हम गुजार देते हैं। चलो हमारे वक्तों में तो टेलीफोन भी इतना नहीं था, यू नो, आजकल तो आईफोन थे, ये फोन थे, स्काई तो ये तो वो, इतने नेटवर्क हैं, और सारी सारी रात लोग जागते रहते हैं पागलों की तरह। लेकिन जब बारी आती है कि मसीह जैसा सर बनने की, तो जल्दी से भाग जाते हैं। जो किराए का, जो भाड़े का चरवाहा होता है वो भाग जाता है। जीसस सेड आई एम द गुड शेपर्ड। हस्बैंड को क्या हो गया है? वो जल्दी भाग जाते हैं, सेपरेशन हो जाती है, जरा सी प्रॉब्लम आती है तो डिवोर्स हो जाता है, भाग जाते हैं। क्या ऐसे शौहर जो हैं वो मसीह जैसे हैं? जैसे मसीह कलीसिया का सर है, ऐसे ही हस्बैंड को अपनी बीवी का सर होना चाहिए। और इसलिए ये एग्जाम्पल्स दी गई हैं क्योंकि ये भेद बड़ा है। इस तरह का इंसान को होना चाहिए कि खुदा ने हमें एक किया है। सर और बदन जो है अलग कर दिया जाए तो क्या होता है? इंसान मर जाता है। इसीलिए बीवी जो है वो हस्बैंड से अलग नहीं की जा सकती, और हस्बैंड जो है बीवी से अलग नहीं किया जा सकता। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई जुदा ना करे, सोचे भी नहीं, वरना मर जाएंगे। हालेलुया। ये भेद है। जैसे मसीह कलीसिया का सर है, ऐसे ही हस्बैंड जो है वो बीवी का सर है। लेकिन ये बात याद रखें कि मसीह जैसे बनने की कोशिश करें अपने घर में। कुर्बानी देने का जज्बा होना चाहिए, बर्दाश्त का जज्बा होना चाहिए। जान देने तक वो गया है कलीसिया के लिए। हम तो ज़रा सी भी तकलीफ नहीं सहते। अगर ये बात निकल जाए मेरे घर से, आउट, I don't want to keep you here. You know, we can't live together. I think we can't live together anymore. There is a problem going on. You see? इस तरह की बातें, और जल्दी से सेपरेशन हो जाती है, जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। You should give time to God. और ये बात याद रखें कि जैसा मसीह कलीसिया का सर है, इसी तरह का शौहर को भी सर होना चाहिए।
ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। हालेलुया। आए शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, जैसे मसीह ने किया। नमूना मोहब्बत का दिया गया है। दावे तो लव के कारण, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू, आई लव यू। जब वक्त आता है तो बस खत्म, एकदम से वो लव कहाँ चला जाता है। आई कांट अंडरस्टैंड दिस। लव खत्म हो जाता है। लव खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं डार्लिंग डार्लिंग करते रहना चाहिए। मसीह जैसे बनने की कोशिश करें ताकि उसको कलाम के साथ गुस्ल से देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। अपने घराने को मुकद्दस बनाने की कोशिश करें। ये हस्बैंड की प्रॉब्लम है, बीवी की नहीं। अगर घराना मुकद्दस नहीं है तो हस्बैंड चूंकि सर है, सारा प्रोग्रामिंग तो यहाँ पर है। अगर आपके घर में प्रोग्रामिंग गलत हो गई है तो ब्लेम वाइफ को ना दे, अपने आप को दे। पहले सोचे तो सही कि प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जैसे बदन में दाग, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। कलीसिया जो है ये एक्चुअली बीवी की जो है वो शबीह पेश करती है। तो यहाँ पर याद रखें कि जो तकाजा है कलीसिया का, जो खुदा ने जो मुकर्रर किया है कलीसिया के लिए, अगर मसीह कलीसिया का सर है तो हस्बैंड को वैसा ही सर होना चाहिए, और कलीसिया को कैसा होना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए या नहीं। कलीसिया के बारे में लिखा है कि वो पाक हो, बेऐब हो और बेदाग हो। कलीसिया कैसी होनी चाहिए? पाक हो, बेऐब हो और बेदाग हो। इस तरह की कलीसिया जब होती है तो फिर मसीह उस कलीसिया का सर है, तो फिर कोई भी शख्स कुछ नहीं कर सकता। और इसी तरह जो कलीसिया जो है ये तशबीहन, इसको वाइफ की तशबीह पेश की गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि वाइफ जो है उसको पाक दामन होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए, बेयाब होना चाहिए। उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदा इस तरह का तकाजा करता है। फिर आगे लिखा, इसी तरह शौहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानंद मोहब्बत रखें। ये कलाम का तकाजा है, मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये खुदा का कलाम फरमाता है कि शौहरों पर ये लाजम है, गुंजाइश नहीं दी गई। यू मस्ट, ये लाजम है आपके लिए कि अपनी बीवी को अपने बदन के मानंद मोहब्बत रखो। अब क्यों मानंद मोहब्बत रखिए? क्योंकि आपको एक बनाया गया है, एक बदन बनाया गया है। जैसे मसीह और कलीसिया एक बदन है, ऐसे शौहर और बीवी एक बदन है। जैसे मसीह अपने बदन की मानंद अपनी कलीसिया को प्यार करता है, वैसे ही हस्बैंड को अपनी बीवी को अपने बदन की मानंद मोहब्बत करना है। खुदा ये चाहता है। हालेलुया। अपने बदन की मानंद लिखा है मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। क्यों अपने आप से मोहब्बत रखता है? कि वो एक है। वे तो ये, जैसे मैंने भाई आसिफ को कहा था कि वो खड़े होकर दिखाएं कि वो एक है। अगर अपनी बीवी को प्यार करता है तो वो अपने आप से प्यार करता है, अपने बदन से प्यार करता है, क्योंकि वो दोनों ही एक हैं। क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, लेकिन यहां पर तो दुश्मनी की इंतहा हो जाती है। कौन अपने बदन से दुश्मनी कर सकता है? अगर अपने वाइफ को, अगर आप अपने बदन समझते हैं, अपने बदन का हिस्सा समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि हम एक हैं, तो आप उसके एनिमी कैसे बन गए रातों रात? क्या हो गया? कौन सी ऐसी बात हो गई कि आप अपने बदन के दुश्मन बन गए? कौन सी ऐसी बात आ गई आपके अंदर कि आप अपने आप से नफरत करने लगे? जो अपनी बीवी से नफरत करता है वो अपने आप से नफरत करता है। जो अपनी बीवी को बुरा भला कहता है वो अपने आप को बुरा भला कहता है, क्योंकि वो एक है, एक बदन है। ये समझने की बात है। तो मेरे चीजों, खुदा का कलाम ये तकाजा करता है
कि अपने बदन से मोहब्बत रखो, क्योंकि किसी ने अपने जिस्म से कभी दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, उसकी लुक आफ्टर करता है। और हस्बैंड पर लाजम है कि वो अपने बीवी की परवरिश करे, उसकी लुक आफ्टर करे, जैसे कि मसीह कलीसिया को, बार बार ये बात आती है, जैसे मसीह कलीसिया की परवरिश करता है, जैसे मसीह कलीसिया के लिए है, ऐसे हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के लिए होना चाहिए, उसकी परवरिश उसको करनी चाहिए, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़ू हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा। आदमी किसके बारे में लिखा है खुदा कलाम में? हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में तो उल्टा ही चलता है। हमारा कल्चर हमें ये सिखाता है कि जो वाइफ है उसको अपने माँ बाप को छोड़ना है और हस्बैंड और उसके ख़ानदान के साथ रहना है। ऐसा ही है ना कल्चर के मुताबिक, लेकिन बिब्लिकल कल्चर ये नहीं है। बाइबल में यह लिखा है कि वो एक हो जाते हैं, वो अपने एक नया ख़ानदान बनाते हैं और उनको एक होना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, और हस्बैंड की ड्यूटीज बयान की गई हैं। और हस्बैंड जो है वो अपने बाप को और अपने माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा। दिस इज द बाइबल सेइंग, नॉट मी। आदमी जो है अपनी माँ बाप को छोड़ेगा, अपने घराने को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ रहेगा, ना कि बीवी छोड़े और हस्बैंड के साथ रहे, जैसे हमारे कल्चर माशरे में होता है। बल्कि एक नया घर बनाएगा। क्यों रहेगा? कि वो अपनी बीवी को साथ लेगा, उसके साथ रहेगा, एक नया खानदान, एक नया घराना जो है उसको तश्कील देगा, उसकी बुनियाद रखेगा। तो इस तरह से खुदा जो है वो चाहता है कि इंसान जो है अपनी खानदान की बुनियाद रखे। फिर आगे लिखा है वो अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने जिस्म होंगे जी? वो दो नहीं बल्कि एक ही जिस्म होंगे। दो मैनेजर नहीं घर में चल सकते, ये बात याद रखना। मैनेजर एक ही होगा, लेकिन मैनेजमेंट का जो काम है वो अपनी अपनी जगह पर रह के करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यू नो दैट। अगर वुमन एक्ट करे मैन की तरह घर में तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्योंकि खुदा ने औरत को मैन अगर बनाना होता तो उसको मैन ही पैदा करता। अगर खुदा ने आपको औरत के तौर पर पैदा किया है तो एक्ट लाइक ए वुमन, नॉट लाइक ए मैन। और मैन जो है अगर देखिए, क्योंकि हमारे माशरे में इस तरह की बुराइयाँ, इस तरह की प्रॉब्लम जो है पाई जाती हैं। अगर आदमी जो है वो औरत जैसे एक्टिंग करे तो आपको कैसा लगेगा बताएं? अगर आदमी औरतों जैसी हरकतें करे तो आपको कैसा लगेगा? इसी तरह अगर औरत जो है वो मर्दों जैसी हरकतें करनी शुरू हो जाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसा खुदा ने बनाया है उसके मुताबिक हमारी एक्टिंग और हमारा सब कुछ होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी वैसे गुजरनी चाहिए। अगर खुदा ने हमें मर्द बनाया है तो मर्द के तौर पर घर में रहें, मैनेज करें। अगर खुदा ने आपको औरत बनाया है तो औरत के तौर पर रहें और मैनेज करें, खुदा के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, जो खुदा ने हमें ऐसा ही बनाया है। फिर आगे लिखा है कि वो एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मसीह में लिखा, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। बहरहाल तो में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। डरती से मुराद ये कि रिस्पेक्ट करे। इन दोनों को हुक्म दिया गया है कि इस तरह से चलने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमें ये पता चलता है कि शादी का जो है ये कोई ऐसा बड़ा भेद है जिसकी बाबत पौलुस रसूल जो है वो कहता है कि इसमें कोई भेद है। ये तो भेद बड़ा है, देख ये भेद है। अब भेद की बात करते हैं थोड़े से मिनटों में, थोड़ा सा वक्त रह गया है। ये कोई ऐसा भेद है जिसमें कामयाबी का राज छुपा है। हालेलुया। ये इसमें कोई ऐसा भेद छुपा है जिसमें अज़वाजु जिंदगी, जो कामयाब जिंदगी है, उसका भेद छुपा है। इसलिए उसने कहा कि ये भेद बड़ा है, इसको समझने की जरूरत है। अब हम उसके भेद की तरफ भी चलते हैं। हालेलुया। इस भेद को वही शख्स खोल सकता है जो इसकी शराइत को पूरा करे। हालेलुया। जो अगर ये भेद है मियाँ और बीवी
इनकी जो रिलेशनशिप है ये कोई बहुत बड़ा भेद है। अगर ये भेद है तो इसको वो शख्स इस भेद को खोल सकता है जो इसकी शराइत को पूरा करे। हालेलुया। अगर आप इसकी शराइत को पूरा नहीं करते तो आप इसको खोल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जब इसराइल की औलाद अपने वादा की सरजमीन में दाखिल होने को थी तो मूसा ने एक बार फिर उनको जिंदगी के वो तरीके उनको याद दिलाए जो खुदा ने उनको दिए थे, रिवीजन करवाई उनकी जब वो दाखिल होने को थे। क्योंकि 40 साल गुजर गए, वो विल्डरनेस में थे। अब नई नस्ल जो है वो आ गई, नई औलाद आ गई इसराइल की, और उनको मूसा ने दोबारा से वो तौर तरीके जिन पर उनको चलना है दोबारा से याद दिलाए। क्योंकि कभी हम अपने तरीके से खुदा को खुश नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। सिर्फ खुदा का तरीका जो बताया हुआ है, जो शराइत उसके लिखी है, उसी तरीके से हम उसको खुश कर सकते हैं। हालेलुया। वरना वही बात आ जाएगी जैसे कोई शख्स हो, वो अपने तौर पर किसी दूसरे शख्स को खुश करने की कोशिश करता है और वो चीज़ उसके सामने मुहैया करे जिससे वो नफरत करता है, तो क्या वो आपको पसंद करेगा? आपका तरीका जो है वो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसलिए कि आपने अपने तरीके से उसको खुश करने की कोशिश की। आपने ये जाना नहीं कि उसको क्या पसंद है, उसके मुताबिक अगर काम करते तो ये बहुत अच्छी बात थी। हालेलुया। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर किसी शख्स को शुगर की बीमारी हो जाती है, अगर उसके ब्लड शुगर है, तो आप गए हैं उसके लिए मिठाई का डब्बा ले जाते हैं कि ले भाई ये खाओ, तो वो क्या कहेगा आगे से? वो आपसे ले तो लेगा, वो लेगा मिठाई का डब्बा, अलग उसको वो इंसुलिन पर है, उसको शुगर की बीमारी, डब्बा तो वो ले लेगा, लेकिन उठाकर कहाँ रखेगा जी? एक साइड पर रख देगा, क्योंकि वो खा नहीं सकता। अगर खाया भी तो मुश्किल, थोड़ा सा चखेगा ही, क्योंकि आपने अपनी खुशी को पूरा किया है, आपने अपने तरीके से उसको खुश करने की कोशिश की है, ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी जरूरत क्या है, उसको क्या पसंद है, वो क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। तो इसलिए मूसा ने खुदा के वो तौर तरीके जिससे खुदा खुश होता है उनको दोबारा से याद दिलाए। हालेलुया। इस्तिशना की किताब उसका 11वां बाब 21 से 23 आयत तक आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। हालेलुया। इस्तिशना निकालें उसका 11वां बाब, इस्तिशना की किताब, जो भी पहले निकाल ले वो पढ़ेगा। इस्तिशना की किताब उसका 11वां बाब 21, 22 और 23 आयत। 11 बाब 21, 22 और 23 आयत लिखा है, ताकि जब तक जमीन पर आसमान का साया है तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की उम्र इस मुल्क में दराज हो जिसको खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा को देने की कसम उनसे खाई थी। क्योंकि अगर तुम उन सब हुक्मों को जो मैं तुमको देता हूँ जान निशानी से मानो और उन पर अमल करो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसे लिपटे रहो, तो खुदावंद इन सब कौमों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम उन कौमों पर जो तुमसे बड़ी और जोरावर हैं काबज होगे। हालेलुया। जहाँ जहाँ लिखा है तुम्हारे पाँव का तलवा टिके वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। यानी आगे बहुत सारी जो बरकत खुदा ने उनको बताई थी, और क्या उनकी औलाद को क्या सिखाया था कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानो, किताबिया रहो, इन पर अमल करो, तो ये सारी बातें जो हैं मैं तुम्हारे दरमियान करूँगा। फिर हम देखते हैं मिलाकी किताब में चले जाए, मिलाकी 2 बाब, मैं चाहूँगा कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ेगा ये, मिलाकी 2 बाब उसकी 13-14 आए। फिर लिखा है कि 1200 साल के बाद खुदा ने बनी इसराइल का फिर जायजा लिया। 1200 साल के बाद जब वो वहां रह रहे थे, कि क्या ये जो हुक्म मैंने फरमाए थे, जो हुक्म मैंने इनको दिए थे, जो अहकामात मैंने इनके सामने रखे थे, क्या ये उन पर अमल करते हैं या नहीं? कोई भी निकाले मिलाकी की किताब का 2 बाब 13 और 14 आयत, कोई बुलंद आवाज से प्लीज पढ़े। तुम्हारे माल के सबब से खुदावंद के मसबा पर आम और नाला और आंसू की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे दिया को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा।
तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनसूबा बीवी है, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद कि उसके पास और अरवा मौजूद थे, कि क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए खुदा तरस नस्ल पैदा हो, बस तुम अपने नफरत से खबरदार हो रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, गौर करें कि 1200 साल के बाद खुदा ने फिर मलाकी के जरिए से इस कौम का जायजा लिया और ये बहुत बुरे तरीके से खुदा के कलाम पर अमल करने में फेल हो चुके थे। ये कौम खुदा के अहकामात पर चलने पर फेल हो चुके थे और इसलिए मलाकी किताब में लिखा, तेरे बाप ने फिर लिखा, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़हब बराओ नाल और आंसू की ऐसी कसरत है कि वो तुम्हारे हदिया को देखेगा ना देखेगा और तुम्हारी हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा, तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? दूसरे लफ्जों में मज़हब पर आते हो, रोते हो, आंसू बहाते हो, कुछ फायदा नहीं होता, ना शिफा का काम होता है, कुछ भी नहीं हो रहा आपकी जिंदगी में, और फिर भी पूछते हो खुदा से कि सबब क्या है, क्यों ऐसा है कि खुदा हमारी आवाज नहीं सुनता? फिर हम देखते हैं सबब यह है, खुदा कलाम में लिखा है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। प्रॉब्लम यह थी कि बीवी और हस्बैंड के दरमियान प्रॉब्लम थी। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से प्यार नहीं कर सकता, अगर कोई बीवी अपने शौहर से प्यार नहीं कर सकती, तो वो खुदा से क्या प्यार करेगी? खुदा से वो कैसे उसके हुक्मों पर अमल कर सकती है? कि खुदा ने सबब यही दिया है। खुदा ने कहा कि सबब यह है कि लिखा है, सबब यह है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, तूने उससे बेवफाई की है। अगर तू उसका बेवफा है तो तू मेरा बेवफा है, बेवफाई की है। अगर वो तेरी रफीक और मनकुआ बीवी है, तेरे पास लाइसेंस है, तेरे पास निकाह नामा है, वो तेरी बीवी है, वो तुझे दी गई है और तूने उससे बेवफाई की, ये तेरी रिलेशनशिप है, ये मैंने तुझे सिखाया था, ये मैंने तुझे पढ़ाया था, ये मैंने तुझसे कहा था कि तू आवारा हो जाए, ये मैंने कहा था कि तू अपनी ही बीवी से बेवफाई करे, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया था? खुदावंद फरमाता है मलाकी के जरिए से, नहीं किया, बावजूद उसके कि उसके पास और अरवा मौजूद थी, उसके पास और भी बहुत कुछ था, लेकिन आपको एक पैदा किया, एक तन पर आया खुदा ने। क्या खुदा और कुछ नहीं कर सकता? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए खुदा तरस नस्ल पैदा हो, हरामजादे पैदा ना हो। जो मियाँ बीवी बनने से पहले जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हरामजादे कहा जाता है बाइबल में। खुदा नहीं चाहता कि इस तरह की औलाद पैदा हो। आगे आप यूरोप और दूसरी कंट्री सब में देख लें, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया में देख लें क्या हो रहा है। फैशन बनता जा रहा है। ये खुदा के खिलाफ एक साजिश है, ये बगावत है खुदा के खिलाफ। खुदा ये नहीं चाहता कि इंसान जो है वो इस तरह का हो जाए। खुदा ने ये सबब दिया है कि इसकी वजह से तुम्हारी दुआएं मज़हब पर सुनी नहीं जाती, वहां पर आंसू बहाते हो, आओ नाला करते हो, रोते हो, लेकिन आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंचती, चूंकि इसलिए कि आप दोनों में बेवफाई का दस्तूर चल पड़ा है। इसलिए कि आप तो बेवफाई की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप तो बेवफा हो गए हैं। खुदा ने यह सबब दिया है। इसराइल उस वादा में दाखिल हो चुके थे, वो खुदा की शराइत को पूरा करने में नाकाम हो चुके थे। वो अपने आप को खुदा के वज़ा करदा मेयार जिंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर खुदा ने जब एक जायजा ले लिया तो उसको बताया कि सबब तो यह है, नाकामी की तमाम वजूहात में से अहम बात यह थी कि वो ख़ास तौर पर अपनी घरेलू जिंदगियां इस दवाजी बंधन में नाकाम हो चुके थे। ये सबब खुदा ने दिया है। इसलिए
खुदा के साथ उनकी रिलेशनशिप जो थी वो खराब हो गई। इस नाकामी का नतीजा अब क्या हुआ? नतीजे पर आते हैं। नतीजा ये, इनकी नाकामी की वजह मजहबी तौर पर नहीं रही बल्कि इसकी घरेलू जिंदगियां थी। पहली बात, इनकी नाकामी की वजह, बनी इसराइल की नाकामी की वजह और कोई मजहबी रसूमात पर चलना नहीं थी कि वो सैक्रिफाइस ठीक तरीके से नहीं कर रहे थे या खुदा के 10 हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे थे या और तरह कोई कानून जो था वो तोड़ा गया था, बल्कि इनकी नाकामी का सबब जो था इनकी घरेलू वजह थी। घरेलू घर में ये नाकाम हो चुके थे, इसलिए वो मजहबी तौर पर नाकाम नहीं हुए थे बल्कि मियाँ बीवी की बेवफाई की वजह से खुदा से दूर थे। नतीजा हम ये देखते हैं कि खुदा उनकी दुआ कबूल नहीं करता, खुदा उनके हदिया जात भी कबूल नहीं करता। नतीजा क्या है? हमने पढ़ा कि वो मजबा पर हदिये लेके आते हैं और वो मजबा पर औनाला है, आंसू बहाते हैं, लेकिन खुदा उनकी किसी भी बात को कबूल नहीं करता। दूसरे बाब की 13-14 आयत में लिखा है, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदाउन के मजबा पर औनाल और आंसू की ऐसी कसरत है कि वो तुम्हारी हदिया को देखेगा, ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। खुशी से। खुदा अगर आप हदिये भी डालते हो, चंदे देते हो और कुर्बानियां देते हो, कुछ भी करते हो, दान देते हो, गरीबों की मदद करते हो, वो कबूल नहीं होंगे अगर मियाँ बीवी के दरमियान प्रॉब्लम है। ये खुदा फरमाता है, ऐसा नहीं होगा। तो मालूम हो जाता है कि ज़वाजी जिंदगी में एक बड़ा भेद है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये भेद है, पौलुस रसूल इसलिए इसको भेद कहता है। अगर इस भेद को समझे बगैर अब खुदा से जुड़े हैं तो मसला बन जाता है। हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की तालीम में हम देखते हैं कि मलाकी नबी ने इस भेद को मुकाशवा के तौर पर जाहिर किया है और इसकी वजह जो है वो ये बताई है कि वो अपनी ज़वाजी जिंदगी में पूरे तौर पर फेल हो चुके थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने इस भेद को पूरे तौर पर खोल के सामने रख दिया। यीशु मसीह ने इस भेद को खोला है। पहली बार यीशु मसीह पर यह सवाल किया गया कि किसी भी इसबाब से अपनी बीवी को छोड़ देना ठीक है या रवा है? जवाब में यीशु ने कहा, तुमने नहीं पढ़ा कि खुदा ने एक ही मर्द और एक ही औरत को बनाया, अब दूसरी को ढूंढते हो? जब एक ही मर्द और एक ही औरत को बनाया, उनको एक बना दिया, तो there is a divisions. It shouldn't be like this. इस बात से मर्द बाप और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, जब ये हमने वाला पढ़ा था, और दोनों एक जिस्म होंगे। हालेलुया। तो ये खुदा का प्लान था। फिर सवाल किया गया, तो फिर मूसा ने क्यों कहा कि तलाक नामा देकर छोड़ दी जाए? जो हमें खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मूसा ने तुम्हारे सख्त दिली की वजह से ये कहा था, मगर शुरू में ऐसा ना था। शुरू में इस तरह नहीं होता था। जब खुदा ने एक ही मर्द एक ही औरत को बनाया, यीशु ने कहा कि मैं ये कहता हूँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये अहकामात फरमाए कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे तो वो ज़िना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। देखिए, यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए। वो इसलिए कि जो कोई लिखा है अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे, तो इसका रिस्पॉन्सिबल वो शख्स है जो छोड़ने वाला है। ही इज द वन हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसके बाद जितने भी गुनाहों की लिस्ट लगती है, जो भी प्रॉब्लम खड़ी होती हैं, द मैन इज रिस्पॉन्सिबल। अगर उसने सबब को जाने बगैर ही सेपरेशन कर दी। आपको पता है कि खुदा ने बनी इसराइल को तलाक दी। यर्मिया में लिखा है कि मैंने इस बेहया कौम से मैं बेजार हूं और मैंने इनको तलाक दे दी है। क्यों दे दी है? कि वो खुदाए वाहिद को छोड़कर दूसरे खुदाओं के पास चली जाती थी। ये कौम ऐसी थी कि दूसरे खुदाओं के साथ पास चलेगी, उनके साथ उसने हरामकारी की। इसको हरामकारी कहा गया है बाइबल में। अपने खुदा को छोड़कर दूसरे खुदा जो है ही नहीं सिरे से, उनके सामने जाकर सिजदे करने और उनको कबूल करना और उनके साथ रिलेशनशिप बना लेना। तो इस सबब से खुदा ने इस कौम को तलाक दे दी। और यही सबब होता है कि जब कोई औरत अपने हस्बैंड को छोड़कर दूसरे की हो जाए तो फिर तलाक जायज हो जाती है। अगर ये सबब नहीं तो इस तलाक का जो रिस्पॉन्सिबल है वो हस्बैंड है, उसको करार दिया गया है। ही इज द वन हु क्रिएटेड द मेस। इस सबब से अगर छोड़ दे तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर और कोई सबब नहीं है।
उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि he is the head, he is the head, and head he is the responsible, head is the responsible. हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं खुदा यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि जो शादी और ब्याह का मेयार खुदा ने मुकर्रर किया है वो दुरुस्त है, वो ठीक मेयार है कि दोनों को एक तन रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मर्द और औरत को जब खुदा ने जोड़ा तो उनकी मुनफरद पहचान जाती रही, यानी वो अलग अलग थे, वो उनकी पहचान खत्म हो गई और खुदा ने उनको एक कर दिया। और गौर करें पैदाइश बाब 1 और 2 में तो खुदा खुद इस काम में बराह रास्त शामिल है, इनको एक करने में। पहला बाब और दूसरे बाब में पढ़े तो खुदा बराह रास्त इन दोनों को एक करने में शामिल है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ये आदम का अपना फैसला नहीं था, बल्कि खुदा का फैसला था कि दोनों एक हों। किसका फैसला था ये खुदा का फैसला था, आदम ने ये फैसला नहीं किया था। खुदा ने आदम को एक औरत बना कर दी और उन दोनों के दरमियान एक रिश्ता कायम कर दिया और वो एक तन हो गए। ये खुदा का फैसला था। लेकिन मेरी बात याद रखें, भेद की बात जब करने वाला हूं, कोई निकालेगा मेरे साथ वाज की किताब निकालें। टाइम काफी हो गया है। वाज की किताब निकालें, 4 बाब उसकी 9 से 12 पढ़नी है। चौथे बाब की 9 से 12 कौन पढ़ेगा? बुलंद आवाज से प्लीज, मुझे आवाज आनी चाहिए। जो भी पढ़े बुलंद आवाज से। वाज की किताब उसका चौथा बाब 9, 10, 11, 12 आयत पढ़नी है। ये सफ़ा नंबर 649 पर है, 649 पर। हालेलुया। जल्दी जल्दी कोई बुलंद आवाज से पढ़े। वाज की किताब उसका चौथा बाब है और उसकी 9, 10, 11, 12 आयत पढ़नी है। जी कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ दे। एक से 2 बेहतर हैं। नहीं, 1 से 2 बेहतर हैं। यहाँ से नामी आयत से 1 से 2 बेहतर है, क्योंकि उनकी मोहब्बत उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। फिर अगर 2 इकट्ठे लेटे तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों का गर्म हो सकता है। और अगर कोई एक पर गालिब हो तो 2 उसका सामना कर सकते हैं, और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती, और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। यहाँ पर देखे हस्बैंड वाइफ की बड़ी वाज़ेह पिक्चर यहाँ पर बयान की गई है, बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। अभी 1 से 2 बेहतर है। ये अच्छा है कि अगर कोई ऐसी मुसीबत आए, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दोनों मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसको उठा सकता है। हालेलुया। अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसको उठा सकता है। लेकिन जो भेद की बात है वो सुलेमान ने ये की है। 1 से 2 बेहतर हैं। फिर आगे लिखा है और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। ये 12वीं आयत का आखिरी हिस्सा है। हालेलुया। सुलेमान यहाँ पर खुदा के उस बड़े भेद का इंकशाफ करता है कि खुदा ने क्यों आदम को एक औरत बना कर दी। ठीक, बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया है। अगर एक गिरे तो दूसरा उसे उठाएगा, और अगर 2 इकट्ठे लेटे तो गर्म होते हैं। अगर कोई एक पर हमला करे तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आखिरी बात जो सुलेमान ने की है वो बड़ी भेद की है। ये बात याद रखें, बड़े भेद की बात है। ये बात बाकी दूसरी दोनों बातों से बहुत मुख्तलिफ है। देखें, एक ही दम से बाकी सारी बातों से एक मुख्तलिफ बात कर दी, और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। वो ये है कि तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। हाँ, यहाँ नोट करें कि 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि
की बात की गई है, एक नहीं दो नहीं बल्कि तेहरी डोरी की बात की गई, 3 की बात की गई है। अब देखिए मियाँ बीवी जो 2 हैं, लेकिन तीसरा कौन है? बोले क्यों तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती अगर तीसरी शख्सियत उसमें मिला ली जाए? पहला आदम, दूसरा हवा और तीसरा खुदा। अगर मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के दरमियान खुदा मौजूद है तो वो कभी नहीं टूट सकते। ये बात याद रखिए कि बहुत सारे लोग दावा तो करते हैं कि जी मैं बड़ी दुआ करता हूँ, मैं बड़ी दुआ करती हूँ, ये हम तो बड़े दुआ गो हैं, लेकिन फिर भी अगर फैमिली टूट जाए तो फिर कौन सी दुआ, कैसी दुआ हुई, किस तरह की दुआ हुई? आपने आपको धोखा दिया, दूसरों को धोखा दिया, इसलिए फैमिली टूट गई, इसलिए डिवोर्स हो गई, इसलिए सेपरेशन हो गई, इसलिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा, लेकिन लिखा यह है कि तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। अगर मियाँ बीवी के दरमियान खुदा मौजूद है तो वो तेरी डोरी है, फिर उसके टूटने के इम्कान जो बहुत कम है, वो टूट नहीं सकते। तो मेरे अजीजों, हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक मसीह ख़ानदान के लिए ख़ास बातें ये हैं कि हमें जानने की ज़रूरत है कि शादी या ख़ानदान जो है ये एक बहुत बड़ा भेद है। इफ्सियों 5:31 आयत में 31 से 32 आयत पढ़ें तो पता चलता है ये एक भेद है। रसूल कहता है बनी इसराइल मजहबी तौर पर नहीं फेल हुए थे, बल्कि उनकी जो फेल होने की वजह थी वो उनकी घरेलू जिंदगियां थी। इसकी वजह से वो खुदा को खुश करने में नाकाम रहे। नतीजा ये हुआ कि खुदा और उनके दरमियान जुदाई हो गई। नतीजा ये होता है। और सुलेमान का जायज़ा ये था कि तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती अगर मियाँ बीवी के दरमियान खुदा है। तो जब ख़ानदान जो है वो एक होता है, मियाँ बीवी एक हैं, तो उनकी दुआएं नहीं रुकती, उनको एक होना चाहिए। क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मियाँ बीवी को एक होना चाहिए, उनमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एक हैं तो फिर खुदा जो है वो हमारे ज़िंदगी में बड़े बड़े मुआज़े करता है, वो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करना शुरू हो जाता है, किसी बात की कमी नहीं रहती। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है वो ये चाहता है कि हमारी दुआएं रुक ना जाएं। खुदा ये चाहता है कि हमारी जो है किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे दरमियान, ताकि किसी भी तरह की जो दुनियावी बातें हैं वो हमारे अंदर या हमारे दरमियान हमारे कलीसिया में नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की बातें जो हैं वो हमारी दुआएं रोक सकती हैं, इस तरह की बातें जो हैं वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। हालेलुया। और इस तरह की बातें जो हैं करने से हमारी जो खुदा के साथ जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाती है। पतरस निकालें, पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 7वीं आयत जो है इसमें भेद की बात की गई है। आखिरी बात करेंगे। पहला पतरस 3 बाब की 7वीं आयत लिखा है, आए शौहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। अक्लमंदी से, चूँकि आप हेड हैं और हेड में अकल होनी चाहिए। अगर हेड ही अकलों पैदल है तो फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। क्या कहो, हेड जो है ना उसको अकल से भरा होना चाहिए। अक्लमंदी से बसर करो और औरत को क्या जानकर जी, नाजुक जुल्फ जानकर उसकी इज्जत करो। नाजुक जुल्फ जानकर उसको, नाजुक जानकर उसकी क्या करो जी, क्या करो, जरा ऊंची बोले, क्या करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में क्या होता है, हमारे पाकिस्तान में तो कहते हैं जी औरत पाँव की जूती है। बताएं क्या खुदा का कलाम ठीक है या वो लोग ठीक हैं? ये जो जिनका माशरा उनको सोचने दे। जो खुदा के लोग हैं उनको वो ऐसी बातें ज़ेबा नहीं देती कि हम इस तरह की बात भी करें। ऐसी बात करना भी गुनाह है, ये बात याद रखें। ऐसी बात करना भी गुनाह है, करनी नहीं चाहिए। लिखा है कि यूँ समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। नाज़र जानकर उसकी इज्जत करो और यूँ समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। दोनों एक नहीं, ये मैं बड़ी दुआ करना, ये दुआ नहीं कर दी, ये दोनों के लिए लिखा है। वारिस है ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। इफ यू डोंट डू अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड देन यू आर सेपरेट फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम गॉड। यू सी, आपकी दुआएं रुक जाएंगी, आप में वो बात नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं
کہ خدا ہماری دعا سنے تو ہماری خاندانی زندگی ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا اور ہمارے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ قائم رہے تو پہلے ہماری گھریلو ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے. ہاللیلویا. یہی ایک وجہ، یہی ایک سبب بیان کیا گیا ہے. بنی اسرائیل جو ہے وہ فیل ہو گئے خدا کو خوش کرنے میں، وہ ناکام ہو گئے خدا کو خوش کرنے میں. یہی وجہ ہے. تو میرے عزیزو، آج ہم نے سیکھا خاندانی زندگی کے حوالے سے کہ خاندانی زندگی کو سمجھنا. پولس رسول نے کہا کہ ایک بڑا بھید ہے افسیوں 5 باب میں، اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر سمجھداری سے اپنے خاندان کو اس کی پرورش کرنی چاہیے، اس کی لک آفٹر کرنی چاہیے. کہ ہسبینڈ جو ہے وہ شوہر کا سر ہے، جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے. یہ بات یاد رکھیں، آدھی بات نہ پڑھا کریں. لوگ آدھی بات پڑھتے ہیں، یہ بائبل میں لکھا ہے جی، بائبل میں لکھا ہے جی، بندہ جڑا جی ہو عورت دا سارے. اگلی گل نہیں پڑھنی کہ کس طرح دا سارے. بیوقوف سار نہیں ہونا چاہیے، مسیح جیسا سار ہونا چاہیے، جو قربانی دیتا ہے، جو محبت رکھتا ہے، جو لک آفٹر کرتا ہے، جو جان دیتا ہے. دنیاوی سار نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسیح جیسا، جیسے مسیح کلیسیا کا ہے. اور کلیسیا کو تشبیہ جو ہے وہ سے دی گئی ہے، اور اس لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو عورت ہے اس کو بے داغ اور ہونا چاہیے، پاک دامن ہونا چاہیے، تاکہ ریلیشن شپ میں کوئی دراڑ نہ پڑے. ہاللیلویا. دونوں کو ایک ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے ایک کیا ہے. یہ بھید ہے جس پر آج ہم نے غور کیا ہے. تو آئیے ہم خدا کی حضوری میں جھکیں اور اپنی زندگی میں خدا کو شامل کر لیں، کیونکہ تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. 2 آپ اور تیسرا خدا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنے خاندان میں شامل کر لیں. اگر کوئی ایسی بات ہے اس سے توبہ کریں. سوری کرنے میں، معافی مانگنے میں کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. جیسے کلیسیا خدا سے سوری کرتی ہے ایسے ہی ہونا چاہیے. ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اوپن ہو. نفرت نہیں بلکہ محبت سے ایک دوسرے سے پیش آئیں، محبت سے ایک دوسرے سے چلیں، تو تب خاندان جو ہے وہ چلتا ہے. آئیے ہم دعا